वर्षा शर्मा रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सफरान इंजन सर्विस इंडिया सुविधा के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। SAESI सुविधा का उद्देश्य बता दें कि एयरक्राफ्ट इंजन की सर्विसिंग, रखरखाव और आधुनिक तकनीकी समाधान प्रदान करना है। इस अवसर पर कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी और राज्य प्रशासन के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। माननीय भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, Honorable Union Minister for Civil Aviation, Sir Ram Mohan Naidu ji, Honorable Minister for Industries and IT, Telangana State, Sri Duddilla Sridhar Babu Garu, Chairman, CEO of Safran. We are proud to welcome Narendra Modi ji for this landmark event. I congratulate Safran for choosing Hyderabad for such big investment. Thank you for your trust and continued partnership with Telangana. This new facility marks an important milestone for Telangana's growth in aerospace and defense. It is the first ever maintenance, repair, and overall MRO center for LEAP engines in India. This facility will employ over 1,000 skilled technicians and engineers. It creates new business opportunities for our local MSMEs and precision engineering companies. Today, we also lay foundation for Safran M88 military engine MRO. This MRO will support Indian Air Force and Indian Navy. Hyderabad is a major aerospace and defense hub for India. We have more than 25 major global companies and over 1,500 MSMEs. Our progressive industrial policy, our MSME policy, is ranked amongst the best in the country. Our world-class infrastructure and dedicated aerospace parks and SEZs have attracted several mega investments from leading global companies. We are now top choice for highly complex precision engineering projects. Hyderabad is chosen by like of Safran, Boeing, Airbus, Tata, Bharat Forge, and others for manufacturing and research and development. Hyderabad is one of the leading MRO and aero engine hubs in India. Our exports in aerospace and defense doubled last year, reaching rupees 30,742 crore in 9 months, overtaking our pharma exports for first time. Telangana consistently wins Best Award for Aerospace from Ministry of Civil Aviation, and Hyderabad is globally ranked #1 in cost effectiveness by Financial Times rankings for aerospace cities of future. Skilling is very important criteria to attract aerospace investments. Telangana has upgraded 100 industrial training institutes into advanced technology centers in partnership with Tata Technologies, making young people job ready for advanced manufacturing. Our Young India Skills University focuses on specialized training for aircraft maintenance. We invite Safran to become a lead partner in aerospace and MRO skilling efforts. Telangana will continue to support partners like Safran, provide world-class infrastructure, and encourage the aerospace and defense sector. We are building
a Bharat Future City spread in 30,000 acres of land. It will be planned totally green, net zero, and India's answer to New York, Tokyo, Dubai, or Singapore, or South Korea. I invite you all, Honorable Prime Minister Modi ji, to Telangana Rising 2047 Global Summit at Bharat Future City on December 8th and 9th to unveil our vision. We wish to become a $1 trillion strategy by 2034 and $3 trillion by 2047. Associating with Viksit Bharat. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बता दी कि संविधान निर्माता को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा बनाई गई दूरदर्शी सोच आज भी भारत को विकसित बनाने की दिशा में प्रेरित करती है। पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में बताया कि हमारा संविधान इंसानी इज्जत, बराबरी और आजादी को सबसे ज्यादा महत्व देता है। पीएम ने आगे लिखा कि संविधान हमें केवल अधिकार नहीं देता, बल्कि नागरिक के रूप में हमारी जिम्मेदारियां भी याद दिलाता है। इन ड्यूटीज को निभाना एक मजबूत लोकतंत्र की नींव है। उन्होंने सभी नागरिकों से आग्रह किया कि वे अपने कामों के माध्यम से संविधान के मूल्यों को मजबूत करने का कमिटमेंट दोहराएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र में एक के बाद एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। शुरुआत उन्होंने भगवान कृष्ण के पवित्र शंख के सम्मान में निर्मित पंचेन स्मारक के भव्य उद्घाटन से की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी बता दें कि ज्योतिसर स्थित महाभारत अनुभव केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने अत्याधुनिक तकनीकी से तैयार की गई महाभारत की ऐतिहासिक झांकी, दृश्य और प्रस्तुति का अवलोकन किया। पीएम ने कहा कि ये केंद्र युवाओं को भारतीय संस्कृति, इतिहास और अध्यात्म की गहराइयों से परिचित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अपने कार्यक्रम की श्रृंखला में प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रह्मसरोवर में दर्शन और पूजा अर्चना भी की। उन्होंने इस पवित्र स्थल की आध्यात्मिक महत्वता का उल्लेख करते हुए इसे भारतीय सभ्यता का अद्भुत केंद्र बताया। कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री के इन कार्यक्रमों के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। इतिहास में विरले ही होते हैं। उनका जीवन, उनका त्याग, उनका चरित्र बहुत बड़ी प्रेरणा है। मुगल आक्रांताओं के उस काल में गुरु साहब ने वीरता का आदर्श स्थापित किया। हम सब जानते हैं कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीद होने से पहले क्या हुआ था। मुगल आक्रांताओं के उस काल में कश्मीरी हिंदुओं को जबरन धर्मांतरण किया जा रहा था। इस संकट के बीच पीड़ितों के एक दल ने गुरु साहब से सहयोग मांगा। तब से गुरु साहब ने उन पीड़ितों को जवाब दिया था कि आप सब औरंगजेब को साफ साफ कह दें, यदि श्री गुरु तेग बहादुर इस्लाम स्वीकार कर लें तो हम सब इस्लाम धर्म अपना लेंगे। साथियों, इन वाक्यों में श्री गुरु तेग बहादुर जी की निडरता, उसकी पराकाष्ठा थी। इसके बाद जिसकी आशंका थी वही हुआ। उस क्रूर औरंगजेब ने गुरु साहिब को बंदी बनाने का आदेश दिया, लेकिन गुरु साहब ने खुद दिल्ली जाने की घोषणा कर दी। जी, राव इंद्रजीत सिंह जी, कृष्णपाल जी, हरियाणा एसजीपीसी के अध्यक्ष जगदीश सिंह जिंडा जी, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज का दिन
भारत की विरासत का अद्भुत संगम बनकर आया है। आज सुबह मैं रामायण की नगरी अयोध्या में था और अब मैं यहां गीता की नगरी कुरुक्षेत्र में हूं। यहां हम सभी श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस पर उन्हें नमन कर रहे हैं। इस आयोजन में हमारे बीच जो संत मौजूद हैं, जो सम्मानित संगत उपस्थित है, मैं आप सभी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, 5-6 साल पहले एक और अद्भुत संयोग बना था। मैं उसका जिक्र भी जरूर करना चाहता हूं। साल 2019 में 9 नवंबर को जब राम मंदिर पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया था, तो उस दिन मैं करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए डेरा बाबा नानक में था। मैं यही प्रार्थना कर रहा था कि राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो, करोड़ों राम भक्तों की आकांक्षा पूरी हो। यूपीएससी ने अपनी शताब्दी वर्ष के अवसर पर 2 दिवसीय शताब्दी सम्मेलन का आयोजन किया है। इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और यूपीएससी के अध्यक्ष अजय कुमार उपस्थित रहे। सम्मेलन का उद्देश्य यूपीएससी के सिविल सेवा में इसकी भूमिका और अधिकारियों के सार्वजनिक प्रशासन में योगदान पर प्रकाश डालना है। कार्यक्रम में भर्ती प्रक्रिया में बता की चयन में पारदर्शिता और शासन व्यवस्था को मजबूत करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। देश भर के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षावादी और इसके साथ ही नौकरशाह भी उपस्थित रहे, जिससे यह सम्मेलन सार्वजनिक सेवा में अनुभव और दृष्टिकोण साझा करने का महत्वपूर्ण मंच बन गया। अब आपको सीधा ले चलते हैं भोपाल, जहां बता दें कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप रोई चैंपियनशिप में सीएम मोहन यादव ने शिरकत की है। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। के अवसर पर राष्ट्रीय एक बड़ी इवेंट इंदौर में भी होने वाली है और उसके बाद वो गुजरात टीम जाने वाली। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इसके पहले आज ये डबल खुशी है इस स्थान पर जब रोइंग चैंपियनशिप की मेजबानी भी हमको मिल रही है और ये और आनंद है कि रोइंग में नेशनल चैंपियन भी हम ही हैं। ये हमारे लिए डबल आनंद है और इस अवसर पर जब मैं मध्य प्रदेश के वाटर स्पोर्ट्स में एशियन गेम्स की तरफ देखता हूं तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पदक जीतने का गौरव भी देश को दिलाने में मध्य प्रदेश की अपनी भूमिका है। मैं इस नाते से मध्य प्रदेश को बधाई देना चाहूंगा। 38वें नेशनल गेम्स, खेलो इंडिया, वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में भी प्रदेश ने बहुत अच्छी भूमिका अदा की है। कई कारण से वैसे तो ये मान के चलो कि चैंपियन होने का और चैंपियनशिप में होस्ट करना ये हमारा डबल दायित्व भी लाता है और ऐसे में जब यहाँ ये चैंपियनशिप हो रही है तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हमारे खिलाड़ी फिर मध्य प्रदेश को गौरव दिलाएंगे। ये अग्रिम शुभकामना और पूरे देश वालों के लिए मैं अपनी तरफ से मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम प्रदेश में देश के लिए सभी के लिए खेले लेकिन देश का नाम दुनिया के स्तर पे बढ़े, इसलिए जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए भी करे जिनके माध्यम से कितना अच्छा लग रहा है। अभी हमारी कहाँ बढ़िया मार्च पास्ट कराया और अब बदख मार्च पास्ट कर रही है।
यह है भोपाल की खूबसूरती और भोपाल का आनंद। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, खेल के सभी क्षेत्रों में समान रूप से बढ़ते हुए हमारी सरकार लगातार प्रोत्साहन दे रही है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भी वैसे तो आदिकाल से खेलों के प्रति भारत का और भारत की जीवन पद्धति का अपना एक विशेष वैशिष्ट्य है। ऐसे में जब आज के समय में खेलों को लेकर के अब कौन सा एशियाड और ओलंपिक है जहां भारत की प्रतिभाओं ने झंडे नहीं गाड़े, आने वाले समय में ये और बढ़ता जाए, मेरी अपनी ओर से शुभकामना दे रहा हूं। और संक्षेप में, क्योंकि विलंब से आया तो लंबा भाषण न देते हुए अपनी बात को यहीं विराम देते हुए शुभकामना देता हूं। 4 दिन तक ये पूरा आयोजन आनंद का एक अलग एहसास कराएगा। वैसे भोपाल सुंदरता के लिए भी जाना जाता है, स्वाद के लिए भी जाना जाता है, और जब आप आए तो भोपाल में पोहे, जलेबी और खान पान की बहुत अच्छे प्रकार से यहाँ अलग अलग संस्थान भी है, और बगल में अब टाइगर अभयारण्य भी है। उम्मीद करता हूं कि हमारे सभी प्रकार के भोपाल के ये जो अवसर पर इस कार्यक्रम के साथ साथ हम आनंद भी लेंगे, प्रदेश को जानने समझने का मौका भी मिलेगा। एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं पूरे आयोजन के लिए शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की 9वीं राष्ट्रीय जंबूरी में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने देश भर से आए स्काउट्स और गाइड्स को संबोधित किया और संगठन द्वारा राष्ट्र निर्माण में निभाई जा रही भूमिका की सराहना की। सीएम योगी ने जंबूरी में प्रदर्शित विभिन्न गतिविधियां, कैंप, मॉडल्स और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का भी अवलोकन किया। कार्यक्रम में हजारों प्रतिभागियों की उपस्थिति रही। क्योंकि याद करिए, उत्तर प्रदेश भारत की अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश है। याद करिए, ये वही प्रदेश है जिस प्रदेश में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने जन्म लिया। आज ही श्री राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर बनकर के तैयार हुआ है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से भारत का भगवा झंडा आज श्री राम जन्मभूमि पर ध्वज का आरोहण के साथ लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वही धरती है जिस धरा पर राम ने जन्म लिया। ये वही धरा है जहां लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया और अपनी लीलाओं को भी रचा। ये वही धरा है जिस धरा पर महात्मा बुद्ध ने पहला ज्ञान भी दिया। उत्तर प्रदेश की धरती महात्मा बुद्ध के राज्य की धरती है, और महापरिनिर्वाण के साथ साथ भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक चातुर्मास भी उत्तर प्रदेश की धरती में व्यतीत किए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में विभागीय योजनाएं, पशु स्वास्थ्य सेवाओं और उत्पादन की रणनीति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने से जुड़े बिंदु पर विस्तार से चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने हालिया 2 दिवसीय दिल्ली प्रवास के दौरान की गई गतिविधियों की जानकारी दी। सीएम ने बताया कि इस दौरान उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में विकास पर विस्तृत चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस दौरे के दौरान स्टील और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश प्रस्ताव राज्य को प्राप्त हुए हैं, जो छत्तीसगढ़ के औद्योगिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। दिल्ली प्रवास था और कल हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई और उनसे छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य चिकित्सा के विस्तार पर चर्चा हुई है और केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता
मामलों के मंत्री चिराग पासवान जी से भी मुलाकात हुई और उनसे छत्तीसगढ़ में निफ्टेम की एक शाखा स्थापित हो इसकी मांग किए हैं और उन्होंने आश्वस्त किया है। और फिर कल भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का छत्तीसगढ़ का दिन था, तो उसमें शामिल हुए। हमारे साथ हमारे प्रदेश के उद्योग मंत्री भी थे, CSIDC के चेयरमैन राजीव अग्रवाल भी थे और हमारे प्रदेश के कलाकारों ने वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम पूरे देश के सामने रखा और वहां पर हमारे प्रदेश का एग्जीबिशन भी लगा है आपके पोशाक के वस्त्रों का और यहाँ के हस्तशिल्प जो बेलमेटर वगैरह से जो सामान बनते हैं उनका, टेराकोटा का, और अच्छा उसका रिस्पांस वहाँ पर मिल रहा है। और आज माननीय रेल मंत्री जी से भी मुलाकात हुई थी और रेल के विस्तार पर उनसे चर्चा हुई है और रेलवे के सेक्टर में काफ़ी छत्तीसगढ़ को मिला है और उसमें और गति आई, इसकी चर्चा माननीय रेल मंत्री जी से हुई है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने संविधान दिवस के अवसर पर बता दें कि सेंट्रल विस्टा में डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर के देश और समाज के प्रति अतुल्य योगदान को याद किया। इस अवसर पर सरकारी अधिकारी और नागरिक भी उपस्थित रहे और उन्होंने संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। समारोह में सामाजिक न्याय और समानता के महत्व पर जोर दिया गया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम से भेंट की है, जिन्होंने हाल ही में पहला T20 वर्ल्ड कप जीतकर देश का नाम रोशन किया। इस अवसर पर मंत्री ने टीम के खिलाड़ियों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि और देश के लिए लाए गए गौरव के लिए बधाई दी। मनसुख मंडाविया ने कहा कि यह जीत न केवल खेल के क्षेत्र में बल्कि विकलांग खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत भी है। उन्होंने खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए उन्हें भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में और भी सफलता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित दिया। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर है, जहां नोएडा एयरपोर्ट उड़ान भरने के लिए तैयार हुआ है। BCAS टीम ने 2 दिन तक सुरक्षा व्यवस्था पर की है। अब टीम बता दें कि DGCA को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और जिसके बाद बता दें कि एरोड्रम लाइसेंस जारी किया जाएगा और टैक्सी समेत सभी सुरक्षा मानकों की जांच और CISF की तैनाती और CCTV कैमरों की निगरानी भी है। कल CM योगी आदित्यनाथ भी बता दें कि नोएडा एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे। दिसंबर में एयरपोर्ट के उद्घाटन की तैयारियां तेज की गई हैं। सबसे बड़ी खबर बता दें, नोएडा एयरपोर्ट अब उड़ानों के लिए तैयार हो गया है। सिविल एविएशन सुरक्षा निर्देशालय की टीम ने एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया है। टीम ने बता दें कि CISF तैनाती, CCTV निगरानी और अन्य सभी सुरक्षा मानकों की जांच की है। अब BCAS अपनी रिपोर्ट DGA को सौंपेगी। इसके बाद बता दें कि एरोड्रम लाइसेंस जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कल एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे। दिसंबर में एयरपोर्ट के उद्घाटन की तैयारियां पूरी तेजी से चल रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, BCAS ने सुरक्षा व्यवस्था जांची है और DGCA की रिपोर्ट सौंपेगी और CM योगी आदित्यनाथ कल बता दें कि एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे, जहां तमाम चीजें और CCTV और इसके साथ ही बता दें कि तैनाती भी यहां देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे देश और दुनिया की तमाम